Hello everyone, welcome back to my channel Way to M classes. ପିଲାମାନେ ଆଜି ହେଉଛି କ୍ଲାସ୍ 6 ଆପଣମାନଙ୍କର ନ୍ୟୁ ଥିଓରି ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଏରିକ୍ସନ୍ ଥିଓରି। ତ ଏରିକ୍ସନ୍ ଥିଓରି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ବ୍ରିଫଲି ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି OTT, OSTT, CTT ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ଏଇ ଥିଓରିରେ ଆମେ ଏରିକ୍ସନ୍ଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇକୋସୋସିଆଲ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦେବ, ଯେତେବେଳେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଉଛି ତୁମକୁ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆକାରରେ ମିଳିଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆସ ଜାଣିବା ଏରିକ୍ସନ୍ ଥିଓରି ବିଷୟରେ। ଏରିକ୍ସନ୍ ଥିଓରିକୁ ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି ସାଇକୋସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥିଓରି ବା ସୋସିଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଓରି। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲି ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ହେବ, ତ ସୋସିଆଲି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଅଛି। ଷ୍ଟେଜେସ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବୁଝିଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଇନଫାନ୍ସି ଏଜ୍ରେ ରହିଲେ କିପରି ସୋସିଆଲି ଡେଭଲପ୍ ହେବ, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଆର୍ଲି ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଲେଟର୍ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ଼୍ରେ ଅଛି, ଗୋଟେ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜେସ୍ରେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ରେ ହଲକ ମତରେ ପଢ଼ିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ନା, ଆମର ଏରିକ୍ସନ୍ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଥିଓରି ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ନା, ପିଲାର ଯେଉଁ ସୋସାଇଟିରେ ସେ ରହୁଛି, ଆଉ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛି ମାନେ ତାର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବା ଦରକାର। ତ ସୋସାଇଟିରେ ରହିଲେ ତାର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବାକୁ ହେଲେ ତାର କିଛିଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେ ଷ୍ଟେଜେସ୍ ହେଉଛି 8ଟା ଷ୍ଟେଜ୍। ତ ମନେ ରଖିଥିବ କିଏ 8ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କର ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏରିକ୍ସନ୍। ମନେ ରଖିଥିବ ଏଇଟା। ତ ପିଲାମାନେ କିଛି ନିଜସ୍ୱର କିଛି ଚିନ୍ତା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ନିଜର କିଛି ଯେଉଁଟାକି ଥାଏ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ଥାଏ ସୋସାଇଟି ସହିତ। ତ ସେ କିପରି ସୋସାଇଟିରେ ରହିବ, କିପରି ସୋସାଇଟିରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବ, ତ ଏସବୁ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଉପରେ ଏରିକ୍ସନ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା, ଦେଖ, ଏରିକ୍ସନ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଜର୍ମାନ ଆଣ୍ଡ ଆମେରିକାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ଆମେ ଏରିକ୍ସନ୍କୁ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ଜର୍ମାନ ଆଉ ଆମେରିକାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ନା, ସେ ଜର୍ମାନ ବହୁତ କିଛି ଦିନ ଜର୍ମାନରେ ରହିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମେରିକାକୁ ମୁଭ୍ କରି ଆସିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୁହାହେଉଛି ଏରିକ୍ସନ୍ ୱାଜ୍ ଏ ଜର୍ମାନ ଆଣ୍ଡ ଆମେରିକାନ୍ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ। ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏରିକ୍ସନ୍, ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଏଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍। ମନେ ରଖିଥିବ କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ଇଜ୍ ଏ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍। ମନେ ରଖିଥିବ ଏରିକ୍ସନ୍ କହିଥିଲେ। ଆଉ କିଏ କହିଥିଲେ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ବା ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ଟା କିଏ କହିଥିଲେ ବା ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା କିଏ ଦେଇଥିଲେ ନା, ଷ୍ଟେନଲି ହଲ୍ ଜଣେ ସାଇକୋଲୋଜିଷ୍ଟ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଦେଇଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖିଥାଉ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ କିଏ କହିଥିଲେ ନା, ଆମର ଏରିକ୍ସନ୍ କହିଥିଲେ। ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ଥାଆନ୍ତି, ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିପାରିନଥାନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ରୋଲ୍ଟା ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ଲେ କଲେ ବା ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଦେଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଭିଟିସ୍ କରିବା କଥା ଦେଲେ, ଦେନ୍ ସେମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ନଦେଲେ, କୌଣସି ଅଦର ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ରହିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ରୋଲ୍ଟା କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଏ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟିରେ କ୍ରାଇସିସ୍ ହେବାକୁ ଲାଗେ। ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଏଇ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଏଇ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଏକର୍ଡିଂ ଟୁ ଏରିକ୍ସନ୍ ଆଡୋଲସେନ୍ସ ପିରିୟଡ଼ ଇଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି କ୍ରାଇସିସ୍ ଆଣ୍ଡ ରୋଟ୍ ଏ ବୁକ୍। ସେ ଜଣେ ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ସେ ବୁକ୍ର ନାଁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ସୋସାଇଟି ବୋଲି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି। 1963ରେ ସେଥିରେ ସେ 8ଟା ଷ୍ଟେଜେସ୍ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖ, ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ସୋସାଇଟି ବୋଲି କିଏ ବୁକ୍ଟା ଲେଖିଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏରିକ୍ସନ୍। ତାପରେ ଦେଖ, ପର୍ସନାଲିଟି ଇଜ୍ ଡେଭଲପ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ଲର୍ନ ଫ୍ରମ୍ ଦ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍। ପିଲାଟି ଯେତେବେଳେ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ସୋସାଇଟିରେ ରହୁଛି, ସୋସିଆଲି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛି, ମିଶିଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଅଦର ବିହେଭିଅର୍ ଅଫ୍ ଦ ପର୍ସନ୍ ଇନ୍ ଏ ସୋସାଇଟି ଯେତେବେଳେ ସେ ଅବଜର୍ଭ କରୁଛି, ସେତେବେଳେ ସେଟାକୁ ସେ ନିଜ ଭିତରେ ସେଟାକୁ ଇନବିଲ୍ଡ କରୁଛି ବା ସେଇଟା ଶିଖି ଯାଉଛି। ସେଇଟା କୁହାଯାଏ ଯେ ପର୍ସନାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁ ଦ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍। ତୁମେମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହୁଛ, କିଏ କେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଯାଉଛ, ମୁମ୍ବାଇ ଯାଉଛ, କୋଲକାତା ଯାଉଛ, ଚେନ୍ନାଇ ଯାଉଛ, ସେଠି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶୁଛ। ଆଉ ମିଶିଲା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ସନାଲିଟି ଅଛି ତୁମ ଭିତରେ ଭଲ ଲାଗିଲେ, ତୁମେ ସେଇ ପର୍ସନାଲିଟିକୁ ବି ଫଲୋ କରିବାକୁ ଲାଗ। ସେଇଟା କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ତ ସୋସିଆଲ ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନ୍ ଫଳରେ ହେବ। କିଏ କହିଥିଲେ ନା, ଏରିକ୍ସନ୍ କହିଥିଲେ।
एरिक्सन बिलीव्स दैट पर्सनालिटी डेवलप इन ए सीरीज ऑफ स्टेजेस। तो पिला जो आमर गोटे गोटे ह्यूमन बीइंग रो ता लाइफ स्पान ने विभिन्न स्टेजेस अछि 8टा स्टेजेस देथिले से 8टा स्टेजेस माध्यम रे गोटे लोकर डेवलपमेंट होई थाए विभिन्न स्टेजेस रे विभिन्न डेवलपमेंट हम नेक्स्ट माने आ कि समय पर एटा पढिबा। तो ही डिटरमिन 8 स्टेजेस व्हिच इज इन लाइफ स्पान गोटे मनुष्यर लाइफ स्पान ने 8टा स्टेज देई गति करथा के कहितले कथा नै कथा कहितले एरिक्सन कहितले। तो पिला माने देखो एठी तुमर स्टेजेस आसीगला ए जो एरिक्सन साइकोसोशियल स्टेजेस रे आमे जानिबा जे गोटे पिला को स्टेजेस देकी गति करूची आ तार सोशियली डेवलपमेंट किपरि हबो। तो पिला माने देखि परिबो फर्स्ट स्टेज अछि इन्फांसी आमे जानि छथि प्रथम ही छोटो पिलाटे थाए तार इन्फांसी स्टेज ही होई थाए। तो सेटा होची केते ना 0 रु 1 बा कोउटी के भी कहउचंदी माने बेले बेले 18 मास पर्यंत भी कुआ जाउची। तो इन्फांसी एज रे कोन थाए ना पिला माने साधारणतः जो कन्फ्लिक्ट रे थांदी कोन ना से ट्रस्ट करिवे ना मिसट्रस्ट करिवे। गोटे लोकटे छोट पिलाटे माने कोळ को डाकुची से ताको विश्वास करी कि जीवो ना जीवनी आ जदि ट्रस्ट कला ता पाखरे गोटे भार्चू डेवलप होबो बा ता पाखरे गोटे डेवलपमेंट क्वालिटी आसीबो सेटा होप जे हाँ सी ता पाखु गले ताको बेटर रिलीफ मिलिबो बा ताको चॉकलेट मिलिबो बा ताको किछि गोटे बेनिफिट्स मिलिबो सेटा को होप बोली से कहउचंती। तो ट्रस्ट और एठी तमे देख परियो डिस्क्रिप्शन में मु लिखिची पॉइंट देइची जे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट that is basic need such as that nourishment and affection will be met। तो देखो जदि सी गोटे लोक को विश्वास करू नहीं मिसट्रस्ट करूची ता पाखु से जीव नहीं से देखि मानला माने हाथ छाटदब छोट पिला देखियो तुम कला ग्रोथ करिया डाकिबो से माने मना करदेबे आसीबेनी मुह बुले देबे सेटा होची मिसट्रस्ट। जदि सी तुमको विश्वास कले तुमको पळे आले तुम तुम गेल कलो ता माने एटा होची ट्रस्ट ता माने एटा कुआ होची कोन अफेक्शन बोली कुआ होची। तो यहाँ कौ पीरियड हम एटा हूँ इन्फांसी अकॉर्डिंग टू एरिक्सन एटा मन रखिदिव एटा बुझा जिनस फर्स्ट तुम मैंने थे भिडियोटा कम्प्लीटली देख बुझ तापर आराम से तुम आंसर दे पार जो एमसीक्यू आसो तापर हूँ कौन भार्चू हम ना होप हम। नेक्स्ट आसवा कौन अर्ली चाइल्डहुड बोली कहते बाकू कहीं टोडलर कहते मन रख मुझे जहाँ कहूँ सेटा को मन रख किसी जिन पढ़ाऊँगी पीपीटी मध्यम कि जिन तुम कहूँ सेटा को तुम मैंने कॉपी लिखिदेव जे अर्ली चाइल्डहुड पीरियड को आम टोडलर बोली कहते जोटा हूँ 1 रु 3 बा आम कहते 18 मास रु 3 इयर पर्यंत कहते। तो यही समय पिला कौन कन्फ्लिक्ट थाए से ऑटोनॉमी हेबे ना सेम एंड डाउट रे पड़े। ऑटोनॉमी माने कौन ना फ्रीडम निज गोटे फ्रीडम दरकार जदि से फ्रीडम न दिया निज निज गोटे लज्जित मन करेंगे सेम मन करेंगे डाउट मन करेंगे जे मत कहीं फ्रीडमटा दि जाऊ ना जदि ताकू फ्रीडम दिगला ता पाखे गोटे भर्चू डेभलप हम से भर्चूर ना हूँ कौन विल पावर बा विल इच्छा शक्ति हम। तो ये आम डेस्क्रिप्शन में पढ़ा कौन अच्छी ना डेभलप ए सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस इन मेनी टास्क। तो बहुत किसी काम कर तार इंडिपेंडेंसनेस पलि आसो से क्या परमिशन मागबनी। आउ द्वितीय कथा कौन हो से कंप्लीट कामटा को भल भाव कर। तो ऑटोनॉमी थी दरकार किसी क्षेत्र में सब क्षेत्र ऑटोनॉमी नुहे किसी क्षेत्र में जो तार डेभलपमेंट हो पार कि सेम आउट आउट जब ऑटोनॉमी नदबा से सेम एंड आउट पड़ सब क्षेत्र में से पचार सब क्षेत्र पचार डर से किसी गोटे भल कम कर डर करनी कहीं ना किसी कहीदेवे से सेम बा डाउट पड़ बस। तो जदि से ऑटोनॉमी से क्षेत्र में मिलला ताले पाखे गोटे विल पावर इच्छा शक्ति क्रिएट हम। तो यहाँ हूँ गोटे सोशल आस्पेक्ट जहाँ द्वारा पिला मानकर डेभलप होता है जदि डेभलपमेंट नहला तो सेम डाउट पड़ जाए। ऑटोनॉमी जदि मिलला तो से बेसी कन्फ्लिक्ट द्वंद्व पड़ी था ऑटोनॉमी पाइबे ना सेम एंड डाउट पाइबे। तापर नेक्स्ट एज को आसिया प्ले एज जोटे खेलकूदर एज बोली आम कहते बेले बेले आम कौन कहते ना अलग टर्म प्री स्कूल एज बोली कहते जोटा कि 3 रु 5 बा 6 वर्ष पर्यंत एटा रोचे कौन ना एतार हूँ इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। इनिशिएटिव माने ताकू किसी अपॉर्चुनिटी मिलिया दरकार अपॉर्चुनिटी माने कौन खेलकूद ताकू सुजोग मिलिया दरकार आमर आर्ट पार्टिसिपेशन ने सुजोग मिलिया दरकार ताकू कौन से जीके कंपटीशन ने सुजोग मिलिया दरकार ओलंपियाड रे सुजोग मिलिया बहुत अच्छी जोटी सुजोग मिलिया ताकू निहाती दरकार कहीं ये समय पिला माने प्री स्कूल माने जस्ट स्कूल को जाइथिबो अंगनवाड़ी जाइथिबो तो ताकू इनिशिएटिव ताकू गोटे अपॉर्चुनिटी दिया दरकार। तो अपॉर्चुनिटी जदि पाइला ताकू पर्पोजफुल ताकू सी कौन कर गोटे पर्पोजफुली नब जोटा कि तार हूँ भर्चू डेभलप हम
किंतु जदि ताको न मिलला ताको गिल्ट अनुभव हो तो गिल्टी फील हो बस। तो ये कौन कौन डिस्क्रिप्शन में ना टास्क इनिशिएटिव ऑन सम एक्टिविटीज मे बी डेवलप गिल्ट व्हेन सक्सेसफुली और बाउंड्रीज ओवरस्टेप्ड माने से बेले बेले कहूँ कि गोटे काम करूथबो जोटा कि ताको बेले बेले गिल्ट लगे कौन पे लगे ना से कामटा ठीक ही नथिबो तो से किसी कहीदेव ताको गिल्ट लगे जदि अनसक्सेसफुल हम से तो जिते सी एटा सक्सेसफुल करदेव किसी इनिशिएटिव ठीक कामटा करदेव से कौन लगे पर्पजफुल लगे। तो ये स्टेजेस गुड़ा जहाँ बुझाऊँ तो मन कर बुझी नब आउ टे घोषा जिनस पार घोषिकी से बुझीदेव तो बेसिक हूँ कौन बुझीबार अच्छी तो आराम से एमसीक्यू आसिले कर खाली स्टेजेस गुड़ा मन रखिदेव। तापर आसला कौन प्री स्कूल प्ले स्कूल पर तो आम जानी जहाँ भी स्कूल आसो ग्रेड स्कूलर बोली कहु केते ना आम 6 बा 7 ରୁ 11 वर्ष पर्यंत आम कहते किए किए 13 वर्ष भी कहते लेट इट आमको मन रखा पड़ो जे स्कूल एज केते वर्ष आम भल भाव जानते। तो ये समय कौन हो ना इंडस्ट्री वर्सेस इनफेरिटी कौन इंडस्ट्री आउ इनफेरिटी भितर कौन आम बुझा तो देख ना यही समय कौन हो ना पिला माने इंडस्ट्री बा पार्टिसिपेशन करेंगे तो मन रख इंडस्ट्री बा पार्टिसिपेशन माने एका इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन माने कौन पिला माने विभिन्न क्षेत्र में पार्टिसिपेट डांस रे हो म्यूजिक रे हो ये समय स्कूल जाते विभिन्न क्षेत्र में पार्टिसिपेशन करने को चेष्टा करि तो सही समय कौन हुए ना ताको या पूर्व एज रे कौन थिला ना प्ले एज थिला तो इनिशिएटिव गिल्ट जदि पिला माननकु आमे कौन किछि पिला किछि कहया चाहू आमे ताको अपॉर्चुनिटी दबा तू कहया चेष्टा कर जदि आमे ताको गाली दबा तो चुपकिना बस किछि कहना तो ताको गिल्ट फील हम तो यहाँ हूँ द प्रॉपर एग्जांपल ऑफ द जोटा कि आम कहते प्ले एज रेत स्कूल एज रोचे कौन दरकार ना टिके जोटा कि हूँ कौन पार्टिसिपेशन ताकू सब क्षेत्र में खेलकूद पार्टिसिपेशन दरकार तो पार्टिसिपेशन जदि न दिगला से टाइम कौन हम ना ताकू इनफेरिटी फील हम निजक निम्न भाव है मो द्वारा खेलटा हो पारे मत से चान्स दौना मुझे गीत गाई पारे से चान्स दौना मुझे भल डांस करें चान्स दौना कहीं टैलेंट थी कि अपॉर्चुनिटी तार जो पार्टिसिपेशन मिलूना तो जिते सी इंडस्ट्री में पार्टिसिपेशन मिल जाए सी सम सहित कॉम्पिटेंस करने लगे पाखे भार्चुटा डेभलप हो जोटा कि आम कहते डेभलप द सेल्फ कॉन्फिडेंस इन एबिलिटी by abilities when the competent and sense of inferiority when not जिते पाखे कौन इनफेरिटी न सेल्फ कॉन्फिडेंस पड़े आसो। नेक्स्ट स्टेज को जीवा जोटा हूँ एडोलसेंस पीरियड एडोलसेंस पीरियड को आम देखी नवा जोटा कि हूँ केते ना 18 बा 19 वर्ष पर्यंत थाए जोटा कि 12 बा 13 वर्ष रु देखी नहीं थो एडोलसेंस पीरियड कौन हो ना आइडेंटिटी एंड कन्फ्यूजन किए कही आइडेंटिटी क्राइसिस एडोलसेंस पीरियड इज आइडेंटिटी क्राइसिस एडिक्शन तो आइडेंटिटी आउ क्राइसिस कौन आइडेंटिटी तार गोटे ना बनया को से चेष्टा करिवो जदि से नाटा न बन पाइला ता रोल कन्फ्यूजन हो कन्फ्यूजन पड़ मु कौन मु वास्तव में कौ जगार अच्छी कौन करी तो यहाँ जदि सी आइडेंटिटी बनईदेला पाखे गोटे भार्चु डेभलप हम सेटा हूँ कौन ना फिडिलिटी जोटा कि आम ओडिया कहते कौन विश्वस्ता बा निष्ठा बोली आम कहते जेकोसी कम जेकोसी से जिते सक्सेस पाऊ से निष्ठार सहित से कामटा कर एडोलसेंस पीरियड मन लगे से कामटा कर जदि पाखे कन्फ्यूजन आसी ना से भार्चु डेभलप हो फिडिलिटी बोली भार्चु बा निष्ठाता बा विश्वस्ता एटा डेभलप हो पार ना पिला माने देखिपार तो जिते बड़े पिलाटी एडोलसेंस पीरियड अच्छी सी कौन कौन कॉलेज जाऊँ देखुँ कौन ना अलग पूरा हाई फाई स्टैंडर्ड वाला बाइक धरिक आसुँच कार धरिक आसुँच सांगसाथी मैंने पाखे देखा गोटे सैकेल धरिक जाऊँगी से टाइम से कह ना आम भी गरीब लोक सोशल स्टाटस को देख तो सोशल इंटराक्ट करुचे ना तो से फिल हम जे ना आम पुअर पर्सन तो से जगह निज कन्फ्यूजन हम सब क्षेत्र में सी आगू जीवनी सब क्षेत्र निजक इनफेरिटी फिल कर तो से जगह कन्फ्यूजन पड़ निजर रोल कन्फ्यूजन पड़ किंतु सी जाऊला कॉलेज कौन पाई ना पाठ पढ़िया स्कूल जाऊला कौन पाई ना पाठ पढ़िया सेटा को आउस देखिलानी सोशल स्टाटस टाक देखिला जदि सी सेटा को भूलिकी निज पाठ पढ़ार देला भल पाठ पढ़ला दिन को गोटे भल बड़ ऑफिसरटे है तो से जगह जिते भल पाठ पढ़ला भल मार्क रखिला से जगह भल मार्क रखिले भी जो मैंने स्टाटस भल जो रिच पर्सन फ्रेंड्स मैंने थे सी पाखक आसिले पाठ पचारे से तार गोटे आइडेंटिटी बनला
केमिति ना भल पाठ पढ़िया एक्चुअली स्कूल कॉलेज जाऊला कौन पे ना भल पाठ पढ़िया तो तापर गोटे फिडिलिटी बा निष्ठा आसला परवर्ती मुहूर्त में सी आहरी बेटर करने चेष्टा कर तो एक्सपेरिमेंट विथ एंड डेवलप आइडेंटिटी एंड रोल ता रोल ऊपर से बेसी एक्सपेरिमेंट करके निजक डेवलप कर दैट इज द एडोलसेंस पीरियड एंड स्टेजेस गिवन बाय द एडिक्शन जोटा कि हूँ कौन ना आइडेंटिटी और कन्फ्यूजन हो पाए जोटा बेसी कन्फ्लिक्ट होपर आस नेक्स्ट स्टेज विषय जाना गोटे हूँ कौन ना अर्ली एडल्टहुड जोटा कि आम के 19 20 रु 29 पर्यंत बोली आम कहते एठी आम जानिया कौन ना एठी आम देख पिला माने ए जगार टिके पिला माने मन देकी देख जेटी लिखाई कौन ना इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन ये समय पिला माने बड़ एडोलसेंस पीरियड रू से आगू जाती जॉब फॉब करता मैरेज करी समय इंटीमेसी आउ आइसोलेशन पीरियड बोली कहु जदि से समय से मैरेज करी मैरेज लाइफ टा सक्सेसफुल है देन से माने कौन करेंगे ना से जगह सी तांकर इंटीमेसी रही मिसेस सहित लाइफ पार्टनर सहित इंटीमेसी रोटा कहूँ परस्पर भितर भल पाइबा बढ़ जोटा कहूँ लव बोली कहुच्छी जदि से पीरियड रे भितर विच्छेद है कौन घर कंदल नहीं घर डोमेस्टिक भायोलेंस नहीं भितर कौन प्रकार माने आइसोलेशन हो गला सेपारेशन हो गला डिवोर्स हो गला तो से जगह बेसी कन्फ्यूजन पलि आसो लव बोली कौन भाषु डेभलप हो पार ना दैट इज आम डिस्क्रिप्शन में पढ़ी पार जे कौन कौन ना एस्टाब्लिशिंग इंटीमेसी एंड रिलेशनशिप विथ अदर्स जोटा कि समस्त सहित इंटीमेसी होगा से चाही था तो से जगह इंटीमेसी न मिलले सी कौन हो ना आइसोलेशन हो निजक सेपरेट करदेव सेपरेट हो बास से जगह भार्चुड लव बोली भार्चुटा डेभलप हो पार ना से समय से बेसिकाली तुम मैंने गोटे एग्जांपल दूसरी कौन ना समय जदि इंटीमेसी नहला कौन प्रकार सेपरेशन हो गला तो से जगह ह्यूमन सागर गीत इज बेस्ट द ह्यूमन सागर गीत सॉन्ग इज बेस्ट एटा को मन रखियो से समय ह्यूमन सागर गीत शुणिबे तो ये दैट इज द समथिंग एग्जांपल तापर आम जानिया कौन नेक्स्ट स्टेज मिडिल एज कौन ना 30 रु 64 बोली गोटे एज अच्छी जोटा कि मिडिल एज कहते जेनेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन जेनेटिव वर्सेस स्टैग्नेशन कौन आमको बुझा पड़ो जोटा कि हूँ कौन ना हार्डवर्क यही समय जेनेटिविटी करेंगे यही समय कौन हे ना समय से काम धंदार लगी था बहुत कठिन परिश्रम करता तरक्की बार डेवलपमेंट से लगी था जोटा कि जेनेटिविटी कहुए आउ स्टेग्नेशन जदि नहला तो निजक स्टेग्नेट करते जब जेनेटिव है गोटे भार्चु डेभलप होता ना केयर कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी एंड बी द पार्ट ऑफ फैमिली फैमिली गोटे पार्ट होगी जेनेटिविटी हार्डवर्क करने लगे जब न कले स्टेग्नेशन घरे बसिक रे भाभी मु कौन करी एटा को मन रखिथो तापर आसला कौन लास्ट को आसला ओल्ड एज आम रिटायरमेंट एज कहते आफ्टर द 60 और 62 65 आम कहते रिटायरमेंट एज जेहेतु चेंज होपर आम कौन कहते जगह हूँ इगो इंटीग्रिटी खाली नुहे टे मेंशन करदेव इगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर इगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर कौन एटा को मन रख ये जगह गोटे भार्चु डेभलप हो ता ना हूँ विजडम तो मन रख मुझे भल एग्जांपल दूसरी गोटे रिटायरमेंट पर्सन बहुत किसी कर 2 ताला 3 ताला बिल्डिंग कर जॉब क्षेत्र में पु मानू सब डॉक्टर कर झील मानू भल जगह मैरेज कर तो से जो जो दायित्व बहनटा करके ठीक भाव में फैमिली को समस्त को लेकिन चली डेवलपमेंट कर गोटे इगो इंटीग्रिटी पलि ना मुझे एमक कर बुढ़ा काले समस्त पाखे गाँव में कहूँ कौन ना मुझे डेवलपमेंट करटा डेवलपमेंट कर मो पु मान कर तो यही प्रकार चिंताधारा ता मन में आसो जोटा कि हूँ इगो इंटीग्रिटी जदि जड़े कर मन डेस्पेयर आसो दुख आसो है मुझे किसी मो पिला छुआ मुझे हैरान हेली किसी करें तो यही प्रकार पाखे डेस्पेयर आसो जदि इगो इंटीग्रिटी पाखे रही विजडम रन अभिज्ञता जे मुझे या कहुए आसेस एंड मेक द सेंस ऑफ लाइफ एंड मीनिंग ऑफ द कंट्रीब्यूशन तार सोसाइटी प्रति घर पर कौन से कंट्रीब्यूशन करी दैट इज द 8th स्टेज ऑफ एडिक्शन साइकोसोशियल स्टेज एडिक्शन साइकोसोशियल थ्योरी तो पिला माने ये थिला तुम स्टेज भला पर तुम मन बुझे दी आराम से बुझ आराम से मन रख आराम से एग्जाम रे नो डाउट तुम ऑप्शन राइट ऑप्शन चूज करी तुम गोटे मार्क पाई पार कौन क्वेश्चन पढ़ले तापर आस यार गोटे फर्मूला अच्छे मन रखिव यार फर्मूलाटा कौन ना एक मन रखा तुम फर्मूला कौन पाइब ना ट्राई QIGE ट्राई क्यू मन रखिव TRIQ पावर क्यू जोटा कहुए IGE कौन ना ट्राई हूँ टी रोचे ट्रस्ट तापर आमर हूँ कौन
जोटा कि तुम यहाँ को सीरियली तुमको देखा पड़ो सॉरी एटा आर रही ए ये जो आर टा रही ए हो टाए टाए क्यू आई जी कौन ना टी फॉर ट्रस्ट ए फॉर ऑटोनॉमी आई फॉर इनिशिएटिव आउरी तीन टा आई रही कौन ना इंडस्ट्री आइडेंटिटी इंटीमेसी एटा तुम देख ये स्टेज स्टेजेस रे जो क्राइसिस बा टास्क बोली कह जाऊँगी ऑप्शन में अच्छी तुम मैंने ये देखिपर तो ये जो ये ट्रस्ट रहा तुम मैंने ये देखिपर ये गोटे ट्रस्ट रहा टी ए आई क्यू क्यू माने तीन टा रहा कौन ना इंडस्ट्री भी आई क्यू जोटा कह इंडस्ट्री आइडेंटिटी इंटीमेसी एगुड़ा रहा तापर लास्ट को रहा कौन ना आम देखी नवा जी आई है देखी नवा देख आई हाँ ट्राई आई क्यू आई जी ई तीन टा आई पर पुणी तार आसला कौन ना आई जी ई इंटीमेसी आमर जेनेटिविटी आमर इगो इंटीग्रिटी एटा मन रखिथ यहाँ हूँ तार फर्मूला भल भाव में मन रख तो ट्राए कौन है ना टी फॉर ट्रस्ट ए फॉर ऑटोनॉमी आई फॉर तीन टा आई फॉर इनिशिएटिव इंडस्ट्री आइडेंटिटी लास्ट आई जी जो आई रहा इंटीमेसी तापर जेनेटिविटी तापर इगो ई फॉर इगो इंटीग्रिटी तो यहाँ हूँ तो फर्मूला अनुसार मन रखिले रख ना तुम डायरेक्ट मन रखा तुम इच्छा तापर आसवा आम देखा जे ये किसी मुझे तुमको बतई फास्ट हूँ इंटीमेसी स्टेज रे देख तुम कौन हो इंटीमेसी स्टेज रे कौन हो तुम मैंने देखिपर जोटा कि देख छोट पिलाटे अच्छी सी क्षीर पीवाई जोटा कि क्षीर पीवाई तार इच्छा हम ये गोटे बतई कौन तापर आसला अर्ली चाइल्डहुड तो पिला माने ये समय कौन करती ना टॉयलेट ट्रेनिंग नियंती मुझे आगुरी झलक मतरे जिते मुझे तुमको कही से जगह टॉयलेट ट्रेनिंग केमी ने कौन ना मुझे बतई कौ बयस निपर प्री स्कूल एज खेलकूदर मातिबे तापर स्कूल एज तो पाठ पढ़े भल फ्रुट्स बाबद खाइबे बा फ्रुट्स भी माने डेवलपमेंट हाँ शारीरिक विकास भल खाद्य खाइबे तापर आसला कौन स्कूल एज पर आडोलसेंस सांगसाथी करेंगे मिसबे जदि सांगसाथी न कले रोल कन्फ्यूजन हम आइडेंटिटी क्राइसिस होपर आसला यंग एडल्टहुड से मैरेज करेंगे जदि मैरेज न माने मैरेज कलापर आइसोलेसन होगा डिवोर्स होगा से ह्यूमन सागर गीत शुणे सेपारेसन फिल करेंगे से जगह निजुक आइसोलेसन करेंगे आदि भल चलला जोटा कि हजबैंड वाइफ भर रिलेसनटा भल चलला सेटा इंटीमेसी बोली आम कहवा तापर आसले कौन मिडिल एडल्टहुड कहगला से समय कठिन परिश्रम करेंगे घर बनइबे जगह किनबे भल भल छुआ मानक भल भल स्कूल पाठ पढ़ेबे यही सब रेनेटिविटी बा जोटा कि हार्ड वर्क रपर आसला कौन ना रिटायर्ड एज बाको आम कहते कौन ना ओल्ड एडल्ट एज बोली कहते मैच्योरिटी होगा ये इगो इंटीग्रिटी रौन रिफ्लेक्ट करेंगे ये मिरर अच्छी कहे मुझे कर मो लाइफ से किसी कर नथिबे कहे मुझे करना तो ये हूँ तुम मान कौन ये गोटे सर्कल मुझे बतईदेली तुमको आउ देखिपर 8 स्टेजेस रे इरिक्शन थियोरी साइको सोशल डेवलपमेंट किपर हो छोट पिलाटे अच्छे देख 0 ରୁ 1 वर्ष तापर आसला सी कौन ना स्टेज 2 को आसला 1 ରୁ 3 वर्ष 3 एज पर्यंत आसला से जगह कौन है ना ऑटोनॉमी एंड सेम डाउट रहा तापर इनिशिएटिव एंड गिल्ट रहा देख तो मैंने प्री स्कूल एज रे इंडस्ट्री इनफेरिटी रहा पिलाटी खेलुची तापर आइडेंटिटी कन्फ्यूजन कौन कर पाठ पढ़ा ना पड़ेब कड़े कम करा पड़ेब तो ये बेसिकली से माने आइडेंटिटी कन्फ्यूज रुहती तापर आसला इंटीमेसी एंड आइसोलेशन जेनेटिविटी एंड स्टैग्नेशन काम कठिन परिश्रम करेंगे आउ निज परिवार किसी करेंगे समाज किसी करेंगे ये सब भावी था बयस आउ तापर लास्ट रहा इंटीग्रिटी एंड डिस्पायर इगो इंटीग्रिटी एंड वर्सेस डिस्पायर काम जदि जीवन सारा किसी डेवलपमेंट करते बुढ़ा बयस से भावे आ रिफ्लेक्ट करेंगे हाँ मुझे न करेंगे भावे ये हूँ कौन ना तुम हूँ ये स्टेजेस ऑफ इरिक्शन थियोरी एंड साइको सोशल डेवलपमेंट जो सोसाइटी रही पिला डेवलपमेंट हम तो ये पिला माने देखिपर तो मानक स्टेजेस अनुसार मुझे तुमको किसी एक्सप्लेनेशन दे देती तो मैंने देखिपर जे साइको सोशल स्टेज 1 ने कौन हो ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट हो द फर्स्ट स्टेज इरिक्शन थियोरी साइको सोशल डेवलपमेंट अकर्स between the birth and 1 of year the age and most of the fundamental stage in life एठी तुमको कौन कह जाउछि तुम माने देखिबार तो ये समय कौन हो ना ये स्टेज रे से फंडामेंटल पिलाटी जन्म नहीं थाए
तो ये समय 1 ईयर पर्यंत से आसी थाए तो ये जगह फंडामेंटल स्टेज बोली कहुए बिकज एंड द इनफांट इज अटरली डिपेंड अपन एंड डिपेंड द ट्रस्ट बेस्ड ऑन द डिपेंडेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द चाइल्ड्स केयर गिवर्स माने केयर दौरान सी ट्रस्ट करें माँ हो भाई हो बापा हो घर अन्य सदस्य ट्रस्ट करें तो ट्रस्ट न कर तो डेवलपमेंट हेनी तापर आसला कौन इफ ए चाइल्ड सक्सेसफुली डेवलप द ट्रस्ट एंड हियर सी फिल द सेफ जदि सी ट्रस्ट पाईगला ता माने सी निजको सेफ फिल करिवो जदि आउ के स्ट्रेंजर अच्छी ना लोक आसिक डाक से जीव ना कहीं से सेफ फिल करनी सी निजको कौन कर मिसट्रस्ट कर तापर है कौन ना हाँ यहाँ रहा आम आसवा देख साइकोसोशियल स्टेज 2 आसवा जो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम डाउट रोचे तो पे फ्रीडम दरकार अच्छे फ्रीडम न मिले निजको कौन करेंगे ना सेम बा डाउट फिल करेंगे द सेकेंड स्टेज इरेक्शन थ्योरी जोटा कि आम कहूँ साइकोसोशियल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द अर्ली चाइल्डहुड एंड फोकस ऑन द चाइल्ड्स डेवलपिंग एंड ग्रेटर सेंस ऑफ पर्सनल कंट्रोल निजको पर्सनल कंट्रोल रखिए आ निजको कौन करेंगे ना किसी फ्रीडम चाहिए चेष्टा करेंगे हाँ सेठी कौन होइछि ना फ्रूएट इरिक्शन बिलीव दैट टॉयलेट ट्रेनिंग वाज द वाइटल पार्ट ऑफ द प्रोसेस टॉयलेट ट्रेनिंग ये समय शिखी था एंड आई हैव द इरिक्शन रीजनिंग द क्वाइट डिफरेंट एंड देन दैट द फ्रूएट इरिक्शन बिलीव दैट लर्निंग टू कंट्रोल वन्स बॉडी एंड फंक्शन एंड लीड्स टू द फील ऑफ कंट्रोल एंड सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस निजको इंडिपेंडेंस बोली भाभी था तापर कौन से अदर इंपोर्टेंट इवेंट्स इंक्लूड गेनिंग मोर कंट्रोल ओवर फूड चॉइस टॉय प्रिफरेन्स एंड क्लोथिंग सिलेक्शन यही सब थाए कौ खेलना खेलें कौ प्रकार ड्रेस पिंधे कौन से कम करेंगे तो यही प्रकार फ्रीडम दरकार होता है तापर आसला कौन ना चाइल्ड हु सक्सेसफुली कंप्लीट देयर स्टेज फील सिक्योर एंड कॉन्फिडेंट व्हाइल दोज हु डू नॉट आर लेफ्ट विथ द सेंस ऑफ इन एडेक्वेसी एंड सेल्फ डाउट ताने जब फ्रीडम मिली से निजक बहुत खुशी मन करेंगे और जब फ्रीडम न मिली डाउट सब रही तापर आसे स्टेज 3 जोटा कि हूँ इनिशिएटिव आउ गिल्ट बोली आम कहते अपरचुनिटी मिलवा दरकार कथा कहबार हो सब क्षेत्र में कथा कि जन शुणा दरकार ये बयस छोट पिलाटा कुनी छुआटा ये बयस जोटा कि आम कहते जोटा इनिशिएटिव आउ गिल्ट जोटा हूँ 3 to 5 वर्ष बोली आम कहते ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर चिल्ड्रेन बिगिन टू एसेट देयर द पावर एंड कंट्रोल ओवर द वर्ल्ड थ्रू द डायरेक्शन ऑफ प्ले एंड अदर सोशल इंटरेक्शन तो अलग लोक सहित खेलती बुलती पिला सहित कथबार्ता करती सब चालीचलन से टाइम सोशियली चेंज होता है तापर कौन ना चिल्ड्रेन हु आर द सक्सेसफुली एट दिस स्टेज फील कैपेबल एंड एबल टू लीड अदर समस्त को सहित मिसी पारे समस्त सहित सांगसाथी सहित लीड नहीं पारे एंड दोज हु फेल एक्वायर एंड देयर स्किल आर लेफ्ट विथ द सेंस ऑफ गिल्ट एंड सेल्फ डाउट एंड लैक ऑफ इनिशिएटिव तो सेठू इनिशिएटिव जदि से गुड़ा सब किसी न कर पाइले सेठू से माने गिल्ट फील करेंगे है ना तापर आसला कौन ना स्टेज 4 आसला कौन ना इंडस्ट्री वर्सेस इन्फेरिटी कौन ना पार्टिसिपेशन पिला मानक ए समय सब क्षेत्र पार्टिसिपेशन दरकार दिस स्टेज कवर द अर्ली स्कूल ईयर फ्रॉम द अप्रोक्सीमेटली एज 5 to 11 होता है तो तापर कौन कहूँ थ्रू द सोशल इंटरेक्शन चिल्ड्रेन बिगिन टू डेवलप द सेंस ऑफ प्राइड एंड देयर द अकम्प्लिशमेंट ऑफ द एबिलिटीज से निज एबिलिटी बुझीपारती कहीं पार्टिसिपेशन मिली बाहर दक्षता बुद्धि कंपिटिशन कम्पिटेन्सीज बुझी है तो पिला डेवलपमेंट जदि न मिल निजको इन्फेरिटी बोली भावे तापर कौन चिल्ड्रेन हु आर द एनकरेज एंड commended by the parents and the teachers and develop a feeling competency and behalf of the skill ताको स्किल अनुसार निजको बहुत धन्य मन करती and those who receive the title and no encourage from the parents and teachers and peers and doubt their the ability and success जदि टीचर द्वारा कौन सी एनकरेज मिललानी तो निजको डाउट रे भावती निजको डाउट रे रखती तापर आस आम जानिबा जोटा कि हूँ 5 नंबर स्टेजेस विषय जोटा आइडेंटिटी एंड कन्फ्यूजन तो ये समय कौन हुए ना पिला माने एडोलसेंस पीरियड था तो पिला जदि कौन से निजर परिचय सृष्टि करने को सुजोग न मिला तो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है रोल को कन्फ्यूजन बोली भावती निजर भूमिका कौन है समाज प्रति सोसाइटी प्रति से जापारती ना तो ड्यूरिंग द एडोलसेंस चिल्ड्रेन आर एक्सप्लोरिंग देयर इंडिपेंडेंस एंड डेवलप द सेंस ऑफ सेल्फ निजर परिचय विषय से चिंता करते कौन ना दोज हु रिसीव द प्रॉपर एनकरेजमेंट एनफोर्समेंट थ्रू द पर्सनल एक्सप्लोरेशन विल एमर्ज फ्रॉम द स्टेज एंड
strong sense of self and feeling the independence of control तामाने तांकु जदि सब एनकरेज मिलथु निजको बहुत धन्य मन करते और निजको कौन करती ना निजर परिचय सृष्टि करिया लागती हाँ तापर कौन दोज हु आर रिमेन द अनश्योर दैट द बिलीव एंड डिजायर विल इनसिक्योर एंड कन्फ्यूज अबाउट देमसेल्फ एंड फ्यूचर से माने जेतेबेले एई सब फुलफिल न करंती फ्यूचर रे कौन हबो कौन नाही से माने किछि बुझी पारंती नाही से जगह रे तांकर रोलटा कन्फ्यूजन हेइ थाए हैला तापर आसले कौन ना तुम स्टेज 6 जोटा कि इंटीमेशन आइसोलेशन यही समय पिला माने जितेबाला से यंग एडल्ट रे थांती तो यही समय से माने कौन करथांती ना अलग लोक सहित इंटीमेसी बा भल पाइबा बा सहित निजर माने जोटा कि परिचय खोजिया को चेष्टा करथांती तो दिस स्टेज तो कवर द पीरियड ऑफ अर्ली एडल्टहुड व्हेन द पीपल आर एक्सप्लोरिंग द पर्सनल रिलेशनशिप चेक करथांती तो एरिक्सन बिलीव it was vital that the people develop close committed relationship with other people तो other people सहित close committed relationship build करती and those who are the successfully जो माने successful होती then से मानकर intimacy होता है जी successfully हबनी तो isolation हब तो ये थिला कथा होची कोन ना स्टेज 6 स्टेज 7 को आसीबा तो जेनेटिविटी स्टैग्नेशन कठिन परिश्रम करिवे जदि न कले ताल स्टैग्नेशन हबो कौन ना ड्यूरिंग द एडल्टहुड वी कंटिन्यू टू बिल्ड आवर लाइफ्स एंड फोकसिंग आवर द कैरियर एंड फैमिली ऊपर फोकस करता ये तो कथा गोटे है तापर आम पढ़ा दोज हु आर द सक्सेसफुली जो मैंने सक्सेसफुली हुआ ताने तांकर एक्टिविटी आउ जोटा कि आम कहते कौन तांकर सोसाइटी पर कर्तव्यटा बढ़ी जो मैंने फेल होता दोज हु फेल टू अटेंड द स्किल एंड फील द अनप्रोडक्टिव एंड अनइनवल्व इन द वर्ल्ड आम निजको अन इफेक्टिव बोली निजको परिचय सृष्टि कर आसला स्टेज 8 जोटा इंटीग्रिटी एंड डिस्पाई तो ये समय ओल्ड हो जाता है कौन कौन ना दिस फेज अकर ड्यूरिंग द ओल्ड एज एंड फोकस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन बैक ऑन द लाइफ ता लाइफ सारा से कौन कर दर्शाई था एंड दोज हु आर द सक्सेसफुली ड्यूरिंग दिस फेज एंड द लाइफ हैज बीन वेस्टेड एंड एक्सपेरिमेंट मेनी रिग्रेट्स जो मैंने भल कर लाइफ रे से माने कहबे जो मैंने भल कर से रिग्रेट्स फील करती एंड द इंडिविजुअल विल बी लेफ्ट विथ द फीलिंग एंड बिटरनेस एंड डेस्पेयर निजको डेस्पेयर मन कर दुखी मन करती तापर कौन को दोज हु फील प्राउड ऑफ देयर अकम्प्लिशमेंट विल फील द सेंस ऑफ इंटीग्रिटी बारे इंटीग्रिटी बा रिफ्लेक्शन बा निजको बहुत धन्य मन करते मुझे जीवन बहुत सक्सेस करी एंड दिस इंडिविजुअल विल अटेंड द विजडम तापर गोटे भर्चू डेभलप हुए तान हूँ अभिज्ञता बोली आम कहते विजडम एंड इवेन व्हेन द कम्फर्टिंग डेथ मला पर्यंत से अभिज्ञता ता पाखरे थाए तो ये हूँ तुम कौन ना ये हूँ तुम इरिक्सन आम पढ़ले साइकोसोशियल थ्योरी तो पिला माने आशा करुच्ची तुमने आराम से थ्योरी बुझीपार आउ एमसीक्यू आराम से तुम कर भिडियोटा भल भाव देख बुझ लेख तुम प्रैक्टिस कर आराम से एमसीक्यू कर तो आज ये धन्यवाद समस्त।